गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, नमस्कार सभी पेरेंट्स को। आज हम सब दोबारा लाइव हुए हैं अपनी पेरेंटिंग टॉक के लिए। आज की जो पेरेंटिंग टॉक है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे हम बात करने वाले हैं। वो है हेल्थ, हमारे बच्चों की हेल्थ, हमारी हेल्थ। हम सबको पता है कि लॉकडाउन में किस तरह हम रोज एंजॉय करके नई नई चीजें बना रहे हैं, खा रहे हैं, कई बार एक्सरसाइज भी मिस कर रहे हैं। But exercise is important. There are other issues also which are increasing day by day, and we should not take our health for granted. So आज के इस टॉपिक हेल्थ इम्यूनिटी के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं मिस्टर करण कक्कड़. ही इज अ सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट एंड सीईओ एट रिवर्स फैक्टर. वो बहुत सालों से काफी अपनी इंडस्ट्री में लोगों को लाइफस्टाइल डिजीजेस को रिवर्स करने में हेल्प कर रहे हैं. सो हमारे बीच में मिस्टर करण कक्कड़ होंगे और वो आपको बताएंगे कि कैसे लाइफस्टाइल चेंजेस से एंड कैसे अपनी इम्यूनिटी को, हमारे बच्चों की इम्यूनिटी को बिल्ड किया जा सकता है. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू एनीथिंग अबाउट योर चिल्ड्रंस eating habit or junk food, you can just put it in the comment section and we will ask him directly. Please stay live and please watch Mr. Karan Kakkar. Till that time, you all are requested to kindly put in questions or concerns in your comment section. So हमारे बीच में काफी लोग आ चुके हैं. Now I would like to introduce Mr. Karan Kakkar with his full degree and everything. Karan Kakkar is an international nutrigenomics and disease reversal expert based in India. He's an expert in holistic nutrition and also associated with American Fitness, associated with uh, AFPA. His passion in medical nutrition led to birth of Reverse Factor, which is backed by an extensive research in the field of nutrigenomics, the scientific study of the interaction of nutrition and genes. Nutrigenomics has revolutionized the world of prevention, treatment, and reversal of lifestyle diseases. He's doing his PhD in epigenetics and neuroscience. He personally consults celebrities like Mr. Mukesh and Mrs. Neeta Ambani and Mr. Bajaj, automobile tycoon of India, and many more other in the industry. So now I welcome you, Mr. Karan Kakkar, on our live for the parents on this page of the Modern School. Thank you so much, Pragati, for such a lovely introduction. And thank you so much, everyone, for having us here. It is indeed a pleasure to be in front of all of you and to share what is right in terms of building immunity and good health. Okay. Also, we need to understand that this is the time when everybody is talking about immunity. Okay. This is the time when our health is something that is of utmost importance, and I mean the best way to take care of our own health right now is to build immunity. And we are going to share with everyone that what are those ways in which we can really build our immune system and create long-term good health. Now, before I begin today's presentation, I would like to really thank the school for taking this initiative.
स्कूल का सही काम होता है ज्ञान को स्प्रेड करना, सही ज्ञान को स्प्रेड करना। एंड आज आई एम सो ग्लैड, मैंने लास्ट 2 महीने में कम से कम हमने 40-45 लेक्चर्स दिए हैं। And you are the third, I think second or the third school who is organizing this. Otherwise it was in companies, yeah, clubs and societies and round tables and rotary clubs, उसी में काफी lectures होते थे। Not many school have done this proactively. So I am very happy that you have thought about the health of your family members, because our children in the school is like our family, all right? And this is the time when we need to think about their health also. So thank you so much once again everyone for having us here. Pragati, I will want this session to be very, very interactive. So if there are any questions on Facebook on whatever I'm discussing, once you have, say, a group of 4 or 5 questions, you can stop me for a while. We can answer them and we can take it ahead. Right? Definitely, sir. We Right. also want that the session Yes. should be interactive and Correct. I don't want people to wait till the end and then ask questions. So keep asking questions so that we can start clearing your doubts. But one thing which I want all the viewers to understand, that हम सब के लिए आज एक ही चीज जरूरी है, क्या जितने भी जन हमें सुन रहे हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम 60, 70, 80 साल के हुए, वी शुड बी फिट, फाइन, हेल्दी। इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है कि जब हम 60 साल के हो, 70 साल के हो, 80 साल के हो, हमें एकदम फिट रहना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाउ डू वी बिल्ड लॉन्ग टर्म हेल्थ? एंड अगर हमें 80 साल तक फिट रहना है, तो एक ही चीज जो ज्यादा काम आएगी वो है हमारी इम्यूनिटी। आवर इम्यूनिटी हैज टू बी आवर बेस्ट फ्रेंड। ओके, तो ये चीज का ध्यान दे। एंड कोई भी क्वेश्चन हो, कीप राइटिंग ऑन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। सो लेट्स बिगिन। ऑलराइट, सो हम आज का सेशन चालू करें उसके पहले एक फेमस कोट, जो दुनिया के सबसे बड़े ब्रेन डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड, उन्होंने ये एक फेमस लाइन बोली है, दैट द प्राइमरी कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस इज नेवर द सिचुएशन बट योर थॉट्स अबाउट इट। हमारे अंदर जो दुख का कारण है वो कभी बाहर की परिस्थिति नहीं हो सकती है, वो हमारे विचार के द्वारा ही हो सकती है। राइट? सो आज कोरोना वायरस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं था। ऑलराइट, कोरोना वायरस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, लॉकडाउन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं था। ओके, बट व्हाट हमारा कंट्रोल क्या चीज पे है? हमारे विचार पे। हमारा कंट्रोल क्या चीज पे है? हम कि हम इस टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, हम इस टाइम को कितना प्रोडक्टिव बना रहे हैं, वो चीज पे हमारा पूरा कंट्रोल है। तो हम उस चीज के बारे में सोचे, ना कि उस चीज के बारे में सोचे जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। करेक्ट? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। ओके, आज व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग? आज हम इस सेशन से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? नंबर वन, दैट हाउ टू बिल्ड लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। ओके, हाउ टू बिल्ड लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। एंड कि हम लॉन्ग टर्म, अगर 70-80 साल तक फिट रहना है, तो हमारी लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ाएं। नेक्स्ट, दूसरा हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इम्यूनिटी बिल्डिंग फूड्स। कौन सा ऐसा खाना है, ओके, कौन सा ऐसा खाना है जो खा के हमारा इम्यूनिटी बहुत अच्छा हो जाएगा। कौन से ऐसे खाने हैं जिसमें इम्यूनिटी बिल्डिंग प्रॉपर्टीज है बहुत सारे, और वो खाना उनको खाना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े। तो उस पर हम आज चर्चा करेंगे। नंबर थ्री इज व्हाट इज द फास्टेस्ट वे टू बूस्ट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बढ़ाने के 10 तरीके हो सकते हैं, ओके, बट व्हाट इज द फास्टेस्ट वे टू बूस्ट इम्यूनिटी, हम उस पे आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें इम्यूनिटी आज बढ़ानी है। तो कौन से वो है जिस तरीका जिससे फास्ट बढ़ता है इम्यूनिटी, आज हम उस पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज कौन सी ऐसी 5 चीज है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। ओके, तो जितना इंपॉर्टेंट अच्छी चीजें करना है,
उतना ही इंपॉर्टेंट है बुरी चीजें नहीं करना। तो कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है और हमें वो नहीं करना चाहिए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एंड नंबर 5, कि कौन सी ऐसी 10 चीजें हैं, हम आपको लास्ट में बताएंगे कौन सी ऐसी 10 चीजें हैं जो आप कल से कर सकते हैं, जो आप कल से कर सकते हैं, आपके घर पे कर सकते हैं, उसमें आधे से ज्यादा चीज आपके घर पे ही होगी। कल से आप कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, बट जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ और इम्यूनिटी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, सो कौन सी ऐसी 10 चीजें हैं जो आप कल से कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको लास्ट में बताएंगे, जो आप इजी है एकदम करने के लिए, बट जिससे हमारी हेल्थ और इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। तो ध्यान से आज का सेशन समझे। हम आपको जो भी आज बताएंगे वो आपको केवल आज या 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना के लिए काम में नहीं आएगा, बट वो पूरी जिंदगी आपके साथ एक अच्छा इंफॉर्मेशन बन के रहेगा। एंड आप उस ज्ञान को अमल करें, ज्ञान को समझे, और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी हमेशा। नेक्स्ट। ओके, व्हाट इज द इम्यून सिस्टम, पहले हम समझते हैं व्हाट इज आवर इम्यून सिस्टम। ओके, सो इम्यून सिस्टम जो हमारा है वो हमारा सेल्फ डिफेंस सिस्टम है। मतलब हमारे अंदर बाहर से हमारे अंदर बाहर से जो भी वायरस, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन जब हमारे बॉडी में जाता है, हमारा बॉडी उस मटेरियल, फॉरेन मटेरियल को आइडेंटिफाई करके हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम वो वायरस, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन को मारता है। ओके, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इट इज लाइक अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, नेक्स्ट, इम्यून सिस्टम जो हमारा है, ओके, इम्यून सिस्टम हमारा है, इट जो है ये एवरीडे चेंज हो सकता है। ओके, वो एवरीडे चेंज हो सकता है। एंड बहुत सारे जन को ये गलत फहमी होती है कि इम्यून सिस्टम जो है वो कांस्टेंट है, कि हमारा इम्यूनिटी तो वीक है, किसी और का इम्यूनिटी हमसे ज्यादा अच्छा है, या किसी और का इम्यूनिटी हमसे ज्यादा कम है। इट इज नॉट लाइक दैट। ओके, इम्यून सिस्टम हमारा जो है वो एवरी डे चेंज हो सकता है। ओके, एवरी डे वो चेंज हो सकता है। एंड किस कैसे चेंज होता है उस पर हम आगे बात करेंगे। बट एवरी डे हमारे खाने पीने से और हमारे विचार से, ओके, हमारे खाने पीने से और हमारे विचार से एवरी डे हमारा इम्यूनिटी चेंज हो सकता है, और इस पे हम आगे डिटेल में बात करेंगे। नंबर 3, our immune system helps us, okay, fight small infections like cold cough। किसी को खांसी बुखार होता है तो हमारी इम्यूनिटी काम आता है, या कोरोना वायरस जैसा बड़ा इन्फेक्शन भी हो तो भी हमारी इम्यूनिटी साथ देती है। टू इवन कैंसर्स, राइट नाउ अभी काफी जन हमें सुन रहे हैं फेसबुक में। मैं आपको सबको बता दूं कि हम जितने भी जन अभी यहाँ पे हैं, हम सबके अंदर अभी कैंसर सेल्स है। हम सब के अंदर अभी कैंसर सेल्स है। पर वो क्या है जो कैंसर सेल को ग्रो नहीं करने देता है? वो क्या है जो कैंसर सेल को मल्टीप्लाई करने नहीं देता है? इट इज आवर इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी भी ग्रो नहीं करती है। हर हफ्ते हर हफ्ते हम 25, ऑन एन एवरेज 25-27 कैंसर पेशेंट देखते हैं। एंड हम ये देखते हैं कि सारे कैंसर पेशेंट में इम्यूनिटी काफी वीक है। फिर सही खाने पीने से, सही खान पान से हम उनका इम्यूनिटी स्ट्रांग करते हैं, एंड धीरे धीरे वो बहुत बेटर हो जाते हैं। नंबर 4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 80 to 85% हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमारे गट में होती है। ना व्हाट इज गट? गार्गी, इफ यू कैन शो देम व्हाट इज गट। ना अभी आपके सामने जो डायग्राम है उसमें जो पेट वाला जो एरिया है जिसमें पूरा ड्राइंग किया है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो एरिया है इसे कहते हैं गट। तो अब आप सोचो, आपके पेट में एक एरिया है उसे कहते हैं गट। हमारा जो 85% इम्यूनिटी है, ओके, 85% हमारी जो इम्यूनिटी है, दैट लाइज इन द गट। ओके,
that lies in the gut. तो हमारा पेट, just go back गार्गी, तो हमारा जो पेट वाला एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ओवरऑल इम्यूनिटी. ओके, सो इस पे हम आगे बहुत चर्चा करेंगे. 80 to 85% हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमारे पेट के अंदर है. ओके, सो विच मीन्स कि खाना पीना इज सो इम्पोर्टेंट फॉर ओवरऑल इम्यूनिटी. नंबर 5, immunity is the key. Immunity is the key for long term disease free health. Okay, अगर हमको long term health बनाना है, अगर हमको लॉन्ग टर्म हेल्थ बनाना है एंड हमको अगर बीमारी से बचना है, ओके, सो हमारा इम्यूनिटी इज गोइंग टू बी आवर बेस्ट फ्रेंड. ओके, नेक्स्ट. ओके, दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है. नंबर 1 इज इनेट इम्यूनिटी. नाउ दिस इज द इम्यूनिटी जिसके साथ आप बॉर्न होते हैं. दिस इज द इम्यूनिटी जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है. इनेट इम्यूनिटी मतलब ये इम्यूनिटी इसके साथ आप बॉर्न होते हैं. फॉर एग्जांपल, हम लोग जब जब हम जब हम कोई भी इंसान जब मदर्स के पेट में होता है, मदर्स के वूम में होता है, उस टाइम में उनके मदर ने अच्छा खाना खाया या नहीं खाया, क्या किसी का डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी था या सी सेक्शन द्वारा थे, तो इस प्रकार के जो भी चीजें होती है उससे भी हमारी इम्यूनिटी पे असर पड़ता है. सो दैट इज द इम्यूनिटी दैट वी आर बोर्न विथ. उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम उसी से पैदा होते हैं. दैट इज इनेट इम्यूनिटी. दूसरा प्रकार का इम्यूनिटी है विच इज नोन एज एक्टिव और अडेप्टिव इम्यूनिटी. नाउ दिस इज द इम्यूनिटी जो एवरी डे चेंज होती है. ओके, एवरी डे चेंज होती है, विच मीन्स हमारे अंदर बाहर से क्या जाता है, हमारे अंदर बाहर से जाता है दो चीज. नंबर 1 इज खाना पीना एंड नंबर 2 इज विचार. ओके, खाना पीना और विचार. सो अगर हमारे अंदर सही खाना पीना जाता है, पपीता, अनार, अमरूद, फ्रूट, वेजिटेबल, तो हमारे अंदर जाके इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है. एंड अगर हमारे अंदर रोज हम भुजिया, ब्रेड, बिस्किट, तला हुआ, पैकेट फूड, प्रोसेस फूड, ये सब चीजें खाएंगे, तो हमारा एक्टिव इम्यूनिटी वीक होता है. सिमिलरली, अगर हम अच्छा विचार हमारे अंदर हो, पॉजिटिव हो, ग्रेटिट्यूड हो, तो हमारे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होती है. एंड अगर हमारा स्ट्रेस लेवल ज्यादा हो, ओके, स्ट्रेस लेवल ज्यादा हो, हम फियर और एंजाइटी में थ्रू आउट रहते हैं, तो हमारा इम्यूनिटी थोड़ा वीक होता है. सो दिस इज एक्टिव और एडेप्टिव इम्यूनिटी जो जो एवरी सिंगल डे, ओके, जो एवरी सिंगल डे चेंज कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फूड एंड थॉट्स. नेक्स्ट. ओके, नाउ ध्यान से समझे. कोई भी खाना, इस दुनिया में कोई भी खाना हो, ओके, उसको हम 3 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1 इज एनिमल फूड, नंबर 2 इज प्रोसेस्ड फूड एंड नंबर 3 इज प्लांट फूड्स. नंबर 1 इज एनिमल food, number 2 is processed food and number 3 is plant food. अभी जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं चाहता हूं आप कमेंट बॉक्स में लिखें आपके हिसाब से इस तीनों में कौन सा अच्छा है, एनिमल, प्रोसेस्ड या प्लांट. इस तीनों में कौन सा अच्छा है आपके हिसाब से, एनिमल फूड, प्रोसेस्ड फूड और प्लांट फूड. I feel that plant-based food should be the best, but we all are used to of having processed food as well. I hope people on Facebook are writing comments. Yes, they are. Right. So, if you can read a couple of comments, 3, 4, I want to see what are their thoughts. Sir, you're not audible. I'm saying if you can just read a couple of comments, what people have written. Yeah, most of the people say that plant food is the best one, but as we all Great. know that we all take processed food. Let us understand. So now, animal food matlab jo non-veg and milk comes under animal foods. Processed foods, anything that comes in a packet, chips, bhujia, kurkure, anything that comes in a packet. Gargi, next.
And number three is plant food, which is fruit, vegetables, lentils, rajma, छोला, जो भी नेचुरली नेचर ने हमें दिया है, जो प्लांट सोर्स से आता है. Now, scientifically proven that animal food and processed foods, okay, animal foods and processed foods trigger lifestyle disease, okay, and processed foods, so animal foods and processed foods trigger lifestyle disease, and plant foods reverse lifestyle disease. Okay, scientifically proven that animal food, processed food बीमारी को बढ़ाता है और प्लांट फूड बीमारी को रिवर्स करता है. नाउ बहुत रीजंस है why plant food is better than animal and processed food, but let us understand that top two reasons कि क्यों plant foods अच्छा है और क्यों हमें plant food खाना चाहिए. कमेंट में बहुत जन ने लिखा है कि प्लांट फूड अच्छा है, बट लेट अस अंडरस्टैंड क्यों. क्योंकि अगर हम समझेंगे तो हम सही चीज करेंगे. सो पहला रीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट महत्व का है, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट. एंटीऑक्सीडेंट मतलब आज एप्पल को काट के बाहर रखो तो वो काला हो जाता है. भुजिया, ब्रेड, बिस्किट को काट के बाहर रखो तो वो काला होता नहीं है. ओके, सिमिलरली क्यों काला नहीं होता है? क्योंकि एप्पल के अंदर जान है. ओके, एप्पल के अंदर जान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, भुजिया भुजिया पैकेट फूड, चिप्स, कुरकुरे में कोई जान नहीं है. ओके, सो वी आर लिविंग बॉडी, वी आर लिविंग सेल्स. तो हमारे अंदर वही चीज जानी चाहिए जिसमें जान है. इस तीनों में किसमें जान, एंटीऑक्सीडेंट कहां ज्यादा मिलेगा? ओनली प्लांट फूड में ही. नंबर टू इज फाइबर. ओके, नंबर टू इज फाइबर. जो इंसान फाइबर खाता है ना, उसको कभी ओवरवेट, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम होता नहीं है. ओके, एंड वेयर इज फाइबर फाउंड? फाइबर इज फाउंड ओनली इन प्लांट फूड्स. सारे एनिमल फूड्स, सारे प्रोसेस्ड फूड्स में नेग्लिजिबल फाइबर और जीरो फाइबर, बट प्लांट फूड में ही भर भर के फाइबर होता है. उसीलिए प्लांट फूड ही हमें 80-90% खाना चाहिए. वंस इन अ वाइल सब कुछ, एवरीथिंग इज ओके, बट डे टू डे आज जितने भी व्यूअर्स हैं ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ. दुनिया में हम लास्ट 7 साल 8 साल से काफी पेशेंट देख रहे हैं जिनको डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, और केवल खाने पीने से उनकी सारी बीमारी रिवर्स हो गई है. उनकी सालों की ब्लड प्रेशर मेडिसिन बंद हो गया, किसी का डायबिटीज मेडिसिन बंद हो गया, किसी के थायराइड मेडिसिन बंद हो गया. तो फूड इज आवर बेस्ट मेडिसिन. और जब हम लास्ट 7-8 साल से पेशेंट देखते हैं जिन्होंने खाने पीने से उनकी बीमारी रिवर्स की, तो हम एक चीज उन सबसे क्या सीखते हैं कि दुनिया में द सबसे सबसे मिसअंडरस्टूड वर्ड अगर कोई है, सबसे मिसअंडरस्टूड वर्ड अगर कोई है, तो वो है डाइट. दुनिया में किसी को डाइट करना ही नहीं चाहिए. 100 साल पहले कितने जन डाइट करते थे? कोई भी नहीं. अगर हमें 80 साल तक फिट रहना है तो हमारी आदतें काम आएगी और ना के कोई डाइट. मैं तो सबको यही कहता हूं कि आदतें सुधारो. हफ्ते में एक बार पैकेट फूड खाओगे तो कुछ नहीं होगा, पर रोज रोज पैकेट फूड खाओगे तो गड़बड़ बहुत होगी. हम हमारे यहाँ आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस जो आज सुन रहे, दे आर पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन. सो हमें ये चीज बहुत समझनी जरूरी है कि हफ्ते, वो बच्चे हैं, वो तो खाएंगे ही ना चिप्स बिस्किट, पर उनको हफ्ते में 1-2 बार दो, उनको रोज रोज ना दो. क्योंकि जब वो पैकेट फूड अंदर जाएगा उसमें चीनी और फैट्स और ऑयल्स और इतने सारे शुगर, सॉल्ट, इतने सारे हैं जो अंदर जाके बीमारी करेगी. ओके, और सबसे महत्व की बात, फाइबर नहीं है. आज मैं एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ रहा था, वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर. उसमें ये था कि लास्ट 30 साल में जो चाइल्डहुड ओबिसिटी है, जो छोटे बच्चे जो ओवरवेट होने लगे हैं, दैट हैज गॉन अप 100%. मतलब 30 साल पहले अगर 1 लाख आदमी 1 लाख बच्चे ओवरवेट थे, तो आज वो 2 लाख हो चुके हैं. ओके, क्यों? क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तब बाहर खाना कितना था? हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार.
बट अभी थैंक्स टू ऑनलाइन फूड डिलीवरी, स्विगी, जोमेटो, ऑल दैट, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ हम बाहर से मंगा रहे हैं, तला हुआ खा रहे हैं। नॉट गुड। आदतें, वापस मैं कहता हूं, इट इज आदतें विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार हफ्ते में, 2 बार हफ्ते में खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट डे टू डे हमारी आदतें अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट। Sir, I have a question related to this. I will come to this. Let me just take last one Okay. slide because that Okay. is related to this. Now हमने डिस्कस किया अभी कि प्लांट फूड में ही फाइबर है। अभी एक चीज समझो कि हमारे पेट में जो गट है, हमने डिस्कस किया कि हमारे पेट में गट है, उसमें 85% इम्यूनिटी है। ओके। और उस गट में करोड़ों, उस गट में करोड़ों गट बैक्टीरिया है। तो आप ऐसे सोचो कि हमारे पेट में करोड़ों बैक्टीरिया है। ओके। जिसका अच्छा रहना हमारी बॉडी के हेल्थ के लिए अच्छा है। अगर उस बैक्टीरिया का हेल्थ अच्छा होगा तो ओवरऑल हमारे बॉडी का हेल्थ अच्छा रहेगा। ओके। और उस करोड़ों बैक्टीरिया जो हमारे पेट में है, उस बैक्टीरिया का खाना क्या है? जो करोड़ों बैक्टीरिया हमारे पेट में है, उस बैक्टीरिया का खाना है फाइबर। और फाइबर मिलता कहाँ है? ओनली प्लांट फूड में ही। बैक जाओ गार्गी, जस्ट गो बैक 1 or 2 स्लाइड्स, वन मोर, या वन मोर, बस। सो फाइबर जो है वो केवल प्लांट फूड में ही मिलता है, जैसे आप देख रहे हैं सबसे नीचे। और नेक्स्ट, और फाइबर जो है वो हमारे पेट में जो करोड़ों गट बैक्टीरिया है उसका खाना है। मतलब कि जब आप पपीता खाएंगे, जब अनार खाएंगे, जब ड्रमस्टिक खाएंगे, जब फ्रूट वेजिटेबल खाएंगे, केवल आप ही खाना नहीं खा रहे हैं, आपके अंदर जो करोड़ों बैक्टीरिया है उसे भी खाना मिल रहा है। और जब आप चिप्स खाएंगे, भुजिया खाएंगे, बिस्किट खाएंगे, तब केवल आप ही खाना खा रहे हैं, आपके पेट में करोड़ों बैक्टीरिया है, उसे खाना नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसमें फाइबर नहीं है। और फाइबर जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारे पेट के बैक्टीरिया का वो खाना है। पेट में बैक्टीरिया जरूरी क्यों है? क्योंकि 85% इम्यूनिटी हमारे पेट में ही है। ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझो। हम इंडिविजुअल खाने पे जाएंगे, बट आप कॉन्सेप्ट समझोगे ना, तो आप दुनिया में कहीं भी रहोगे, आप अच्छा कर पाओगे। यस प्रगति। Yes, Pragati, if you have questions, I can take. That many people think that eating eggs give you a lot of proteins and taking extra proteins and all these things. So how exactly can we justify that protein taking from eggs is Very good how? question. अब नेक्स्ट स्लाइड हमारा प्रोटीन और उस पर बात करेंगे, तो आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन इसके अलावा? एनी क्वेश्चन जो फेसबुक कमेंट्स में आए हैं फेसबुक कमेंट में ही अभी सर तक? है कि हाउ कैन वी टेक सर्टेन फूड टू मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्गर, बिकॉज अब तक ये बहुत बड़ा लोगों में बिलीव है कि जब हम दूध, दही, पनीर ये सब खाते हैं तभी बहुत स्ट्रांग होते हैं, और लोगों में बहुत बिलीव है कि ज्यादा खाना खाने से हम स्ट्रांग होते हैं। या बहुत अच्छा क्वेश्चन, हम इसको डिटेल में आंसर करेंगे, डोंट वरी। एनी अदर क्वेश्चन जो हम अभी ले सकते हैं? और सर एक और क्वेश्चन है कि आजकल जो फूड है वो बाहर से, जो हम हमारा वेजिटेरियन जो लोग हैं जो खाते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दे आर ऑल राइब्ड विद लॉट ऑफ medicines and other unnatural things. How safe it is to take them and then become a vegan, I would say. ओके। प्रगति जी, सबसे पहले तो ना हमको ये वर्ड पसंद नहीं है, जो वीगन आप बोले ना, हमको ये पसंद नहीं है। आई टेल यू व्हाई। गो बैक गार्गी। नाउ देखिए, कोई भी खाना है वो या एनिमल फूड या प्रोसेस्ड या प्लांट, यही होगा। नाउ व्हेन आई से वीगन, व्हेन एनीबॉडी यूजेस द वर्ड वीगन, वीगन मतलब एनिमल नहीं खाना है। एनिमल नहीं खाने तो क्या बच गया हमारे सामने? प्रोसेस्ड और प्लांट फूड। अब बहुत जन बोलेंगे हम तो भाई वीगन है, पर पूरे दिन वो फ्रेंच फ्राइज खाएंगे, गाठिया खाएंगे, जलेबी खाएंगे, ढोकला खाएंगे, चिप्स खाएंगे, भुजिया खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, और बोलेंगे हम तो वीगन है, क्योंकि वो खाली प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। ओके।
तो आई डोंट लाइक द वर्ड वीगन बिकॉज ऑफ दैट। हमें नेचुरल चीज खानी चाहिए जो नेचर ने दी है, जो प्लांट फूड है। देयरफॉर आई यूज द वर्ड प्लांट फूड, ईटिंग प्लांट फूड इज बेटर, क्योंकि उसमें प्रोसेस भी आउट हो गया। मेक सेंस प्रगति? Yes, ओके, totally, totally. नाउ कमिंग बैक टू injections and pesticides and all that. Now let us understand, हमने डिस्कस किया कि एप्पल को काट के बाहर रखो तो वो काला हो जाता है, ब्राउनिश हो जाता है, रेडिश हो जाता है, बिकॉज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स उसमें कम होते हैं, ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस होता है। कोई भी चीज जिसमें जान है, जिसमें ऑक्सीजन जाता है, उसमें ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस होता है। नाउ यस, इट इज अग्रीड दैट अगर वो ऑर्गेनिक हो, पेस्टिसाइड फ्री हो, 100% प्योर एप्पल हो, तब तो बेस्ट, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो 100% बॉडी के अंदर काम करेगा। बट एज फार एज वो एप्पल काला होता है, एज फार एज उसमें लिविंग सेल्स है, ओके, वो हमारे अंदर जाके अच्छा करेगा। अगर पेस्टिसाइड, इंजेक्शन, ये केमिकल्स, ये सब है तो 100% काम नहीं करे, वो 60-70% काम करेगा। बट एज फार एज उसमें लिविंग सेल है, वो लिविंग सेल वो लिविंग बॉडी में जाके काम करता है। हम अगर ये सोचे कि उस एप्पल में पेस्टिसाइड इंजेक्शन हो सकता है तो छोड़ो, एप्पल नहीं खाना, अपने भुजिया ब्रेड खाते हैं, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ, करेक्ट? और जैसे हमने इस प्रेजेंटेशन का पहला स्लाइड में बताया था कि जो बाहर की परिस्थिति है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है, उसके बारे में विचार करके या चिंता करके कुछ होगा नहीं। आप अगर ग्रो कर सकते हैं पेस्टिसाइड फ्री तो ग्रो करें, बट अगर ग्रो नहीं कर सकते हैं और आपके सामने फ्रूट वेजिटेबल जो नॉर्मली बाजार से खरीदते हैं वही वाले हैं, तो हम उसके बारे में चिंता करें क्यों? हमें जो सही है, हमें जो सही चीज है, जो सही ज्ञान है, हमें उसको अप्लाई करना है, एंड रेस्ट बॉडी विल टेक केयर ऑफ दैट। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अनदर वे टू लुक एट फूड इज मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। ओके, ध्यान से समझे। नाउ मैक्रोन्यूट्रिएंट में आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, और माइक्रोन्यूट्रिएंट पे आता है विटामिन्स, मिनरल्स, और देयर इज दिस थर्ड क्लास व्हिच इज नोन एज फाइटोन्यूट्रिएंट। नाउ ध्यान से समझेंगे, 95% डॉक्टर, डाइटिशियन, जो भी बोलो, दे फोकस ऑन मैक्रोन्यूट्रिएंट, कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना कार्ब खाना चाहिए, कितना फैट खाना चाहिए। नॉट पीपल में फोकस ऑन माइक्रोन्यूट्रिएंट। बट 100 साल पहले कोई सोचता था हमें कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना फैट खाना चाहिए, कितना कार्ब खाना चाहिए? कोई सोचता था? नहीं। हमें भी नहीं सोचना है। अगर हमें लॉन्ग टर्म डिजीज फ्री रहना है तो हमारे अंदर खाने पीने से माइक्रोन्यूट्रिएंट ज्यादा जाना चाहिए, खाने पीने से विटामिन, मिनरल, फाइटोन्यूट्रिएंट, ये सब चीज ज्यादा जाना चाहिए। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात। दूसरा चीज, दैट प्रोटीन की जो बात कर रहे थे कि एनर्जी चाहिए, प्रोटीन, मिल्क, पनीर नहीं खाएंगे, तो ध्यान से समझो, प्रोटीन के अंदर 3 क्लास होते हैं। नंबर 1 इज एनिमल प्रोटीन, नंबर 2 इज आर्टिफिशियल प्रोटीन, एंड नंबर 3 इज प्लांट प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन, आर्टिफिशियल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन। आर्टिफिशियल प्रोटीन मतलब वो प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन सप्लीमेंट जो डब्बा में आता है, जो अगेन 50 साल पहले, 30 साल पहले तो था ही नहीं, 20 साल पहले था ही नहीं। ओके, वो बहुत गड़बड़ होता है, वो किडनी में जाके, अंदर जाके किडनी पे लोड बढ़ाता है, तो आर्टिफिशियल चीज तो खाना ही नहीं चाहिए। दूसरा हो गया एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन मतलब, ओके, एनिमल प्रोटीन मतलब कि थिंग्स लाइक पनीर, non-veg, milk is animal protein. Okay, milk is animal protein. So milk product is animal protein, non-veg is animal protein. So that is one thing which comes under animal protein. Okay, another thing is plant protein. Now plant protein matlab things like sprouts. Okay, things like sprouts, uh, things like dal, things like pumpkin seeds. Okay, uh, all those things come under plant protein. Okay, now let us understand, it is the biggest myth, बहुत बड़ा ये myth है। okay,
एंड बहुत बड़ा एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में दैट प्रोटीन, ओके, प्रोटीन खाली एनिमल सोर्स से ही मिलता है, ओके, एनिमल सोर्स से ही मिलता है, ओके, बट इट इज रॉन्ग। आज कितने, ध्यान से समझो, कितने एथलीट्स है, कितने एथलीट्स है। विराट कोहली का एग्जांपल लेते हैं। विराट कोहली जो है वो हमारे इंडिया का कैप्टन है, क्रिकेट प्लेयर है, उसे प्रोटीन ज्यादा चाहिए, उसे प्रोटीन ज्यादा चाहिए या हमें प्रोटीन ज्यादा चाहिए? आज विराट कोहली भी खाली प्लांट बेस्ड फूड खाता है, क्योंकि लॉट ऑफ एविडेंस आर नाउ शोइंग, लॉट ऑफ एविडेंस आर नाउ शोइंग दैट एनिमल प्रोटीन से बीमारी बढ़ती है, एनिमल प्रोटीन से किडनी पे लोड बढ़ता है। तो ये सब चीज हमें अवॉइड करनी चाहिए या बहुत कम करनी चाहिए, और नेचुरल सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन खाना चाहिए। अभी हमारे विंटर के सीजन में मटर आता है, ओके, विंटर के सीजन में मटर आता है। लेट अस अंडरस्टैंड, मटर में भर भर के प्रोटीन है। हम ना प्रगति जी, whoever is interested, we can give, okay, we can give a list, okay, we can give a list of plant protein, okay, हम आपको 10-15 नाम भेज देंगे जिसमें भर भर के प्लांट प्रोटीन है, Yes, ओके, sir. भर भर के प्लांट प्रोटीन है। आप वो आगे फॉरवर्ड कर देना, ओके, सो दैट जिनको भी इंटरेस्ट हो वो सही चीज का ज्ञान समझे, That will be ज्ञान great, ले, sir. एंड दे कैन फॉलो, ओके, ग्रेट। Thank you. नाउ विटामिन मिनरल्स फाइटोन्यूट्रिएंट हमारे खाने पीने में होने चाहिए, ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड के व्हाट इज दिस फाइटोन्यूट्रिएंट। जो आपके सामने तीसरा है, फाइटोन्यूट्रिएंट, ओके, व्हाट इज फाइटोन्यूट्रिएंट? नेक्स्ट, सो फाइटो मतलब प्लांट, ओके, जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जो नेचुरल कलर है, गाजर, बीट, रेड येलो ग्रीन कैप्सिकम, ब्रोकली, जितने नेचुरल कलर्स है, ओके, वो हमें ज्यादा खाने चाहिए, ओके, जितने ज्यादा हम कलर्स खाएंगे, जितने नेचुरल कलर्स खाएंगे, उतने हमको न्यूट्रिएंट ज्यादा मिलेंगे। अलग अलग कलर में अलग अलग न्यूट्रिएंट है, जिसका हमको फायदा ज्यादा मिलेगा, ओके। नेक्स्ट, बिग स्टडी हैड शोन के अराउंड 74% पीपल डू नॉट ईट इनफ रेड, ओके, अराउंड 69% पीपल डू नॉट ईट इनफ ग्रीन, अराउंड 83% पीपल डू नॉट ईट इनफ व्हाइट। ना व्हाइट के अंदर देखो, जैसे आप सबके सामने अभी स्क्रीन में दिख रहा है, ईजीसीजी, ओके, एलिसिन, ओके, ये जो है ना, ये सब नेचुरल फाइटोन्यूट्रिएंट्स के नाम है। हर एक के अंदर, ग्रीन, रेड, सब के अंदर अलग अलग फाइटोन्यूट्रिएंट के नाम आपको दिखेंगे। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हमारे अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट जाने चाहिए। नाउ ये जो एलिसिन है, ओके, एलिसिन जो है, एलिसिन इज अ कंपाउंड इन गार्लिक। गार्लिक के अंदर एलिसिन नाम का कंपाउंड है, जो एक्सीलेंट फॉर एंटी कैंसर, excellent for fatty liver, okay, excellent for cholesterol, okay, so we need to understand। तो हमारे अंदर जब नेचुरल फूड्स खाएंगे ना, तो हमारे अंदर नेचुरल कलर्स जाएंगे, तो हमारे अंदर ये सब फायदा मिलेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगेन अराउंड 80% पीपल, नेक्स्ट गार्गी, 80% people do not eat enough orange and yellow, 76% people do not eat enough purple and blue, okay, so we need to understand this कि जितने ज्यादा, बैक जाओ, जितने ज्यादा कलर खाओगे ना, उतने ज्यादा फायदे आपको ज्यादा मिलेंगे, ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ मैम, आप सबको, जितने भी व्यूअर्स है, उनको हम एक रियल टाइम एग्जांपल देते हैं, ओके। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, हम उनको सवाल करते हैं कि सुबह से लेके रात तक, सुबह से लेके रात तक आप क्या खाते हैं। हम जब लोगों को पूछते हैं, मोस्ट पीपल आंसर बाय सेइंग सुबह चाय बिस्किट, फिर नाश्ते में पोहा भुजिया, समथिंग लाइक दैट, ओके, फिर लंच में नॉर्मल रोटी सब्जी दाल चावल, ओके,
एंड शाम को वापस चाय बिस्किट, और डिनर पे रोटी सब्जी दाल चावल। तो जो इंसान सुबह चाय बिस्किट, फिर पोहा भुजिया, फिर लंच, फिर चाय बिस्किट और डिनर, जो इंसान इस तरीके से खाना खाता है, लंच और डिनर को अगर हम 2 सेकंड के लिए साइड में रखें, लंच और डिनर विच इज नॉर्मल रोटी सब्जी दाल चावल, उसको हम 2 सेकंड के लिए साइड में रखें, तो लंच एंड डिनर के अलावा, लंच एंड डिनर के अलावा लंच एंड डिनर के अलावा उस इंसान के अंदर जो सुबह चाय बिस्किट पोहा भुजिया शाम को चाय बिस्किट खाया, उनके अंदर कितने प्लांट फूड गए, उनके अंदर कितना फाइबर गया, उनके अंदर कितने कलर्स गए, उनके अंदर कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट गए, कितने फाइटो न्यूट्रिएंट गए, नहीं के बराबर। वो बोलेगा मैं तो घर पे ही खाता हूं, मैं तो बाहर ही खाता ही नहीं हूं। पर दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि लंच डिनर के अलावा हमारे अंदर कितने कलर जा रहे हैं, नेचुरल कलर, कितने प्लांट फूड, कितने फाइबर। ओके, ये सब चीज समझना बहुत जरूरी है। ओके, सो वेयर पीपल गो रॉन्ग। ओके, सो लंच डिनर के अलावा हमारे अंदर भर भर के प्लांट फूड खाना चाहिए। एंड आप अगर सेशन के एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे आपके अंदर दिन में प्लांट फूड जा सकता है। ओके, सो नंबर 1 मैसेज वाज कि हमें प्लांट फूड ज्यादा खाना चाहिए। 85% इम्यूनिटी हमारे पेट में है, पेट को फाइबर चाहिए और वो प्लांट फूड में ही मिलता है। नंबर 2 मैसेज वाज दैट कलर्स, नेचुरल कलर खाने चाहिए जो नेचुरली प्लांट फूड में मिलते हैं, तो वो ही हमारे अंदर जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं गार्गी, नेक्स्ट। नाउ द रियल कॉज ऑफ लो इम्यूनिटी, द रियल कॉज ऑफ लो इम्यूनिटी इज माइक्रोन्यूट्रिएंट मेलन्यूट्रिशन। ओके, कि माइक्रोन्यूट्रिएंट मेलन्यूट्रिशन जो है, that is the real cause of low immunity. Okay, now which means next, now things like zinc, selenium, copper, folic acid, vitamin C, ये सब चीज जो है जब ये हमारे बॉडी में जाएगी तब हमारा इम्यूनिटी अच्छा होगा। ओके, एंड ये सब चीज कहाँ मिलेगा? ओनली प्लांट फूड में ही। तो वो इंसान जो सुबह चाय बिस्किट पोहा भुजिया शाम को चाय बिस्किट खाता है, उनके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट कितने कम जाते हैं। ओके, विटामिन सी, जिंक, सिलेनियम खाने पीने से कितने कम जाते हैं। तो उसीलिए धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 2 महीना 4 महीना 6 महीना जब वो उस तरीके से खाएंगे कि उनके अंदर ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं जाता है, तब धीरे धीरे उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट जैसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, जैसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी इम्यूनिटी कम होती है। व्हाई? बिकॉज पीपल डोंट ईट इनफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। जैसे जैसे आपकी एज बढ़े, आपको ये चीज का और ज्ञान होना चाहिए कि आपके अंदर नेचुरल नेचुरल माइक्रोन्यूट्रिएंट, अलग अलग कलर्स भी ज्यादा जाने चाहिए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो घर पे बड़े लोग को भी जरूर दे, क्योंकि बहुत स्टडीज कोरोना वायरस पे ये बताई है कि हुएवर इज 55-60 अबव, उनका रिस्क ज्यादा है क्योंकि उनका इम्यूनिटी कम है। जिनको दूसरी बीमारी है लाइक ब्लड प्रेशर डायबिटीज, उनका रिस्क ज्यादा है क्योंकि उनमें इम्यूनिटी भी ऑल्सो कम है। तो ये इंफॉर्मेशन उन्हें भी पास करें। नेक्स्ट, नेक्स्ट। Now, there is something known as pH scale. Okay, 0 to 14 is the scale. 7 is neutral. 7 to 14 is alkaline. And 0 to 7 is acidic. 7 to 14 is alkaline. 0 to 7 is acidic. Okay. So हम आप कमेंट में, जो भी व्यूअर्स फेसबुक में, आप कमेंट में लिखो कि हमारे बॉडी में क्या होना चाहिए। ओके, एसिडिक या अल्कलाइन, एसिडिक या अल्कलाइन, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? I believe, sir, neutral. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड, हमारे बॉडी में अल्कलाइन एटमॉस्फेयर होना बहुत जरूरी है। ओके, ब्लड पीएच, लेट अस अंडरस्टैंड,
blood pH is around 7.35 to 7.45. Okay. Okay, Gargi, next. Blood pH is around 7.35 to 7.45, which is body tends to be on the alkaline side. Scientifically proven कि अल्कलाइन अगर बॉडी रहे तो बीमारी होती नहीं है. ओके. एंड अगर एसिडिक रहेगा तो बीमारी ज्यादा होती. इवन cancer cells grow double fast. Okay, cancer cells grow double fast when we have acidic environment. Cancer cells cannot grow when we have alkaline atmosphere. Okay, milk has a pH of around 6, which is acidic in nature. Okay, दुनिया में सबसे घटिया चीज कोल्ड ड्रिंक. Okay, one of the worst foods on this planet is cold drink. Just look at the pH 2 to 3. हमें रहना चाहिए 7.35 7.45 जहां blood pH है, so body tends to be that side always. Cold drink has a pH of around 2 to 3. Okay, which is very very acidic in nature. Okay, अगेन कभी कभी पीना इट इज ओके. बर्थडेज एनिवर्सरीज उस टाइम में पी लो, दैट इज ओके. साल में एक बार, दो बार, तीन बार पी लिया चलेगा. बट हफ्ते में 2 बार, महीने में 4-5 बार, नॉट अ गुड आइडिया. उससे हार्मोनल इम्बैलेंस, ओवरवेट, डायबिटीज, फैटी लिवर, स्ट्रोक्स, ब्रेन इश्यूज सब कुछ बढ़ता है. सो उसलिए हमें वो एकदम अवॉइड करना चाहिए, नहीं के बराबर. स्पेशली बच्चे लोग को तो जितना हो सके दूर ही रखना चाहिए. ओके, नेक्स्ट. जितना प्लांट फूड खाएंगे हम उतने अल्कलाइन ज्यादा होंगे. ओके, अगेन गाजर, बीट, रेड, येलो, ग्रीन, कैप्सिकम, जितने ज्यादा प्लांट फूड खाओ उतने हम अल्कलाइन ज्यादा रहेंगे. नेक्स्ट. 5 things that can weaken the immune system. ये हम समझते हैं 5 चीज जिससे हमारी इम्यून सिस्टम वीक होती है. नंबर वन इज स्ट्रेस. नाउ अगेन थोड़े टाइम के लिए स्ट्रेस लो कि भाई हमारे बिल्डिंग में आग लग गई है. ओके, हमें नीचे जाना है भाग. दैट इज ओके, दैट इज अक्यूट स्ट्रेस. ओके, सामने से गाड़ी आ रहा है, गाड़ी से बचना है, दैट इज अक्यूट स्ट्रेस. वो 2-5-10 मिनट के लिए, विच इज ओके, बॉडी कैन हैंडल. बट जब हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं ना, जब हम क्रॉनिक स्ट्रेस लेते हैं ना, तब दैट इज नॉट गुड. उससे हमारा इम्यूनिटी बहुत वीक होता है. क्रॉनिक स्ट्रेस इज नॉट गुड, उससे इम्यूनिटी बहुत वीक होता है. तो वो हमें नहीं लेना चाहिए. एंड आई कॉल दिस अ मैन मेड स्ट्रेस. व्हाई मैन मेड स्ट्रेस? बिकॉज हम बार बार उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं. हम बार बार हम पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं और हम उसके बारे में सोच के हम उसी की चिंता करते हैं, विच इज रियली नॉट गुड. उससे हमारा इम्यून सिस्टम काफी वीक होता है. ओके, सो दैट इज समथिंग दैट वी शुड अवॉइड. नेक्स्ट, दूसरा है सेडेंटरी लाइफस्टाइल. ओके, तो एक ही जगह पे हमें ज्यादा देर के लिए बैठे रहना, इज नॉट गुड. वो हमें चीज का ध्यान देना चाहिए. ना आप बोल सकते हैं कि लॉकडाउन है, हम बाहर नहीं जा सकते, बट एटलीस्ट हर 1-1.5 घंटे में हम एटलीस्ट उठ के 5-10 मिनट वॉक कर सकते हैं. ओके, हम फिजिकली थोड़े घूम सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं. पर एक जगह पे बैठे रहना फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज नॉट गुड. ओके, तो हमें थोड़ा एक्टिव रहना बहुत जरूरी है. नंबर 3, नाउ यू अंडरस्टैंड कि क्यों जंक फूड, पैकेट फूड, तला हुआ मैदा, ये क्यों हमारे इम्यूनिटी के लिए खराब है. क्योंकि वो अंदर जाके कोई फाइबर नहीं है, कोई फायदा नहीं देगा अंदर जाके, और वो हमारे गट बैक्टीरिया को खाना नहीं देगा, तो अंदर जाके बीमारी बढ़ाएगा. सो उसीलिए अभी हमारे अंदर ये सब चीज कम जाना चाहिए, उससे इम्यूनिटी वीक होगा. नंबर 4 है लैक ऑफ क्वालिटी स्लीप. जो भी बोलो, नींद हमारी अच्छी होनी चाहिए. नींद हमारी अच्छी नहीं होगी तो बहुत बीमारी बढ़ेगी. ओके, और आज जिनको भी नींद का प्रॉब्लम है, आप कमेंट में डालो आपको नींद की इशू है तो.
हम आपको 3-4 चीज ऐसी बताएंगे जिससे आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाएगी। ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि जब हम रात को सोते हैं ना, तो केवल बॉडी सोता है, ब्रेन नहीं सोता है। हमारा माइंड अंदर जाता है और बहुत सारी क्लीनिंग करता है। हम जब सोते हैं, हमारा बॉडी वाइट ब्लड सेल्स बनाता है, जिससे हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीज समझनी बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर सही चीज होना चाहिए। एंड नींद अच्छी होना बहुत जरूरी है, उससे हमारी इम्यूनिटी। कोई भी इंसान 3 दिन ना सोए, 2 दिन ना सोए, क्या वो तीसरे दिन काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, राइट? तो हमारा इम्यूनिटी अच्छा होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हमारी नींद अच्छी होनी बहुत जरूरी है। जिसको भी नींद का प्रॉब्लम है, आज हम आपको बताएंगे 3-4 चीज ऐसी बताएंगे जिससे आपकी ओवरऑल नींद बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, नंबर 5 इज स्मोकिंग। इस पे देयर इज नो डिस्कशन और नो डिबेट कि स्मोकिंग अच्छा है या बुरा है। हमें ये चीज मालूम है कि स्मोकिंग इज बैड। इतने स्टडीज हैव शोन कि वो लंग्स को और हार्ट को खराब करता है, पर उसके अलावा हमारे बॉडी में हर सेल में हर सेल में डीएनए है जिसको वो डैमेज करता है। हर सेल में वो डीएनए है जिसको वो डैमेज करता है। उसीलिए स्मोकिंग इज वेरी बैड इम्यूनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो पांचों चीज है ना, ये अंदर जाके हमारे इम्यूनिटी को वीक ही करेगी। तो हमें इससे दूर रहना चाहिए, या इसको हमको मिनिमाइज करना चाहिए। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट, दिस इज माय फेवरेट स्लाइड। इसको सब ध्यान से देखना। हाँ, ये मेरा फेवरेट स्लाइड है। 4 pillars of good health. ओके, 4 pillars of good health. ओके, जितने भी जन है जिन्होंने अपनी बीमारी रिवर्स की है, या जिन्होंने इम्यूनिटी बढ़ाया है, या जिन्होंने अच्छा हेल्थ किया है, वो सब कोई इस 4 पिलर में ध्यान देता है। और हम चाहते हैं कि आप ये 4 पिलर को ध्यान से समझो। ओके, नंबर 1 इज फूड एंड न्यूट्रिशन, खाना पीना। नंबर 2 is physically being active. Number 3 is good sleep. And number 4 is emotional health. Okay. ये विजयता जी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं that we should use sugar or not in our food. Okay. तो हम इसको डिटेल में आंसर करेंगे। प्रगति जी, आप याद रखना, शुगर सॉल्ट के बारे में हम आंसर करेंगे इन अ व्हाइल आफ्टर दिस स्लाइड। So 4 pillars of good health. 4 pillars of good health. Number 1 is food and nutrition. Number 2, physically being active. Number 3, good sleep. And number 4 is emotional health. ये चारों चीज पे ध्यान रखना बहुत। इमोशनल हेल्थ मतलब ब्रेन, हमारा माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हमें ये चीज समझनी है कि हमारा जो माइंड है, ब्रेन है, वो कोई गार्बेज नहीं है, वो डस्टबिन नहीं है। आप कंटिन्यूअसली स्ट्रेस ना ले। आज जितने भी जन है ना देख रहे हैं जो इसे, आप सबको ना एक चीज कहना चाहते हैं। तो अभी हम आप सबको एक चीज कहना चाहते हैं, और वो ये है कि आप लोग सब खुश रहो। बस खुश रहो, खुश रहो। इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। आप खुश तो सब कुछ ठीक है। आज कितने मदर्स देख रहे होंगे, आई एम श्योर आज आप लोग सब ने लाइफ में बहुत जन का किया है, बहुत जन का किया है। अभी टाइम है कि आप अपना ध्यान रखो। अगर आप ठीक रहोगे तो आप सबका ध्यान रख पाओगे। ओके, सो मेरे ये आप सबसे बहुत बड़ी विनती है कि आप एकदम इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखें। हाँ, हम इतने पेशेंट देख रहे हैं जो इनको इतना सैड, डिप्रेशन, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी, फियर, नॉट गुड। जितना भी अच्छा खा लोगे ना, अगर आप माइंड को अपने साथ नहीं रखोगे ना, तो आगे चल के तकलीफ होगी। तो मेरी आप सबसे ये विनती है कि एकदम खुश रहो, इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखो, नींद अच्छी हो जाएगी, फिजिकली एक्टिव रहो,
खाना पीना हम अच्छा कर लेंगे। ओके, ये चारों चीज पे ध्यान दो, चारों चीज पे ध्यान दो, तो ओवरऑल हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। कितने जन, जब मेरे पास लोग आते हैं ना, हमको एकदम अच्छा नहीं लगता है जब लोग आते हैं, उनका रोज का खाना पीना ठीक नहीं है, प्लांट फूड खाते नहीं है, फ्रूट वेजिटेबल खाते नहीं है, फिजिकली एक्टिव रहते नहीं है। ओके, फिजिकली एक्टिव रहते नहीं है, नींद का कोई अता पता नहीं है, 2 बजे 3 बजे सोना, इमोशनली काफी स्ट्रेस लेते हैं, हैप्पी रहते नहीं है, एंजाइटी में रहते हैं। और फिर वैसे लोग हमें कहते हैं कि हम तो आलू खाते नहीं है, हमको लगता है आलू से मोटापा होगा। हम तो मैंगो खाते नहीं है, हमको लगता है मैंगो से शुगर बढ़ेगा। अरे, ऐसा कुछ नहीं होता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि हम डे टू डे क्या कर रहे हैं। अगर आप डे टू डे अच्छा फाइबर प्लांट फूड खाते हैं, फिजिकली एक्टिव है, नींद अच्छी है, स्ट्रेस नहीं लेते हैं, खुश रहते हैं, हफ्ते में 1 बार 2 बार चॉकलेट खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डे टू डे हमारा अच्छा होना चाहिए, डे टू डे हमारे अंदर सही चीज जानी चाहिए। अगर हम ये सब चीज का ध्यान दें तो वंस इन अ वाइल सब चलता है, बट डे टू डे हमारे अंदर गड़बड़ नहीं जाना चाहिए। ओके, तो ये चीज का आप ध्यान दें। 4 पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ, इस पे एकदम फोकस करेंगे। नाउ आप सबके अंदर आप सबके सामने हम एक डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे। गार्गी, इफ यू कैन ओपन द डॉक्यूमेंट। हमने अभी तक आपको कॉन्सेप्ट बताया है। ओके, हमने अभी तक आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि क्या क्या चीज हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। अभी हम आपके सामने एक डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे। हम चाहते हैं कि आप सब वो डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखो। वो डॉक्यूमेंट में वो डॉक्यूमेंट पे हम आपको बताएंगे कौन सी चीजें खानी चाहिए। ओके, अभी तक हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अभी हम डायरेक्ट चीजों पे जाएंगे। बट हम वो पीडीएफ आपसे शेयर करें उसके पहले हम 15 सेकेंड का एक बार रिकैप करना चाहते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया। और रिकैप में हम ये आपको बताना चाहते हैं कि क्या क्या चीज हमने डिस्कस की। सो नंबर वन हमने डिस्कस किया कि हमारे अंदर प्लांट फूड ज्यादा जाना चाहिए। प्लांट फूड से में फाइबर होता है, हमारे गट बैक्टीरिया को फाइबर ज्यादा चाहिए जिससे इम्यूनिटी बढ़ता है, तो फाइबर हमारे अंदर जाना चाहिए। नंबर 2 हमने डिस्कस किया कि हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा कलर जाना चाहिए। ओके, नंबर 2 हमने डिस्कस किया कि हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा कलर जाना चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट फाइटो न्यूट्रिएंट जाने चाहिए। तो जितने आप कलर्स खाओगे, गाजर, बीन्स, बीट, ब्रोकली, रेड, येलो, ग्रीन, कैप्सिकम, जितने कलर खाओगे उतने ज्यादा फायदे मिलेंगे। तीसरा चीज हमने डिस्कस किया कि हमारे अंदर खाने पीने से अल्कलाइन खाना जाना चाहिए। सो प्लांट फूड और एक रीजन है हमें क्यों खाना चाहिए, उससे बॉडी अल्कलाइन होता है। चौथा चीज हमने डिस्कस किया, 5 चीज हमें जो नहीं करनी चाहिए जिससे इम्यूनिटी वीक होता है। नंबर 1 इज स्ट्रेस, नंबर 2 इज एक ही जगह बैठे रहना, नंबर 3 इज जंक फूड, मैदा, तला हुआ, ये सब चीज, नंबर 4 इज लैक ऑफ गुड स्लीप, क्वालिटी स्लीप ना होना, एंड नंबर 5 इज स्मोकिंग। ये 5 चीज से इम्यूनिटी हमारी वीक होती है, तो ये 5 चीज हमें अवॉइड करना चाहिए। एंड लास्ट 5th पॉइंट हम जो डिस्कस किए वो है 4 पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ। ओके, 4 पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ, फिजिकल फूड एंड न्यूट्रिशन, फिजिकली बीइंग एक्टिव, गुड स्लीप एंड इमोशनल हेल्थ। तो ये कॉन्सेप्ट जो 5 चीज हमने आपको बताई, आप सब ये 5 चीज को याद रखें, 5 चीज को याद रखें, सो दैट दुनिया में आप कहीं भी रहो ना, आप अच्छा चीज कर सकते हैं। ओके, नाउ let us go to this, Pragati, do you have some questions or should we go to next points? So we do have some questions. 2-3 ले लेते हैं। ठीक है sir. So one question is from Prashanti. She is asking that what kind of oil should we use? ओके, गुड क्वेश्चन। नाउ ध्यान दें, हमें रिफाइंड ऑयल हमें अवॉइड करना चाहिए। ओके, रिफाइंड ऑयल हमें अवॉइड करना चाहिए। सो सफोला, सनफ्लावर, ये सब चीज वी शुड अवॉइड। जितने मिनिमली प्रोसेस्ड हो, सो जैसे तिल का तेल होता है ना, तिल का तेल वो अच्छा होता है कंपैरेटिवली। ओके, नंबर 2 होता है ये मस्टर्ड ऑयल, दैट इज ओके। ओके, नंबर 3 ग्राउंडनट ऑयल इज ओके।
तो ये सब चीज आप कर सकते हैं यूज, और वो भी ऑयल कहाँ पे यूज करेंगे, लंच और डिनर में ही। तो लंच और डिनर में ही यूज करेंगे, तो इसमें से कुछ भी तिल का तेल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ये सब आप यूज करें। ये थोड़ा जितना यूज करना हो उतना ही करें, ज्यादा ऑयल ना डालें। हमारे इंडिया में दो चीज हैबिट बुरी है। नंबर वन इज ओवर कुकिंग, हम ज्यादा कुक करते रहते हैं, एंड नंबर टू इज बहुत सारा ऑयल डालते हैं। तो ये दो चीज जितना जरूरत हो उतना ही करें, ओवर ना करें। इसके अलावा हमारे अंदर ऑयल जाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट। So one question was from Vijeta that whether we should use sugar and in our food. हाँ, या गुड क्वेश्चन। देखो, ध्यान रखो कि कोई भी अच्छा खाने में तो आप अवॉइड करो तो बेटर है। ओके, सो आप गुड़ वगैरह यूज करो, दैट इज बेटर। बट शुगर सॉल्ट में इंपॉर्टेंट समझने का क्या पॉइंट है, ये हम आपको बताते हैं। कोई भी इंसान कोई भी इंसान कोई भी इंसान शुगर या सॉल्ट ऐसे ही हाथ से नहीं खाता है। आप किसी को नहीं देखोगे प्लेट में सॉल्ट पड़ा है हाथ से खा रहे हैं, प्लेट में शुगर पड़ा है हाथ से खा रहे हैं। नहीं, लोग ऐसा नहीं करते हैं। प्रॉब्लम ये है, खाने पीने में भी आप थोड़ा डालो, आई डोंट माइंड। ओके, दैट इज थोड़ा सॉल्ट तो डालना है, विच इज ओके, नो प्रॉब्लम। शुगर भी अवॉइड करो, गुड़ डालो तो बेटर है। ओके, या अगर मानो थोड़ा शुगर भी डालते हो, आई एम ओके। द बिगर प्रॉब्लम है कि जब हम जो पैकेट फूड खाते हैं ना, उसमें जितना शुगर सॉल्ट है। हम एक एग्जांपल देते हैं आप लोग को। कॉर्नफ्लेक्स समझते हैं आप लोग सब, केलॉग कॉर्नफ्लेक्स आते हैं, बहुत बच्चे खाते हैं इंडिया में कॉर्नफ्लेक्स नाश्ते में, दूध कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स में चीनी भरती है। देर इज समथिंग नोन एज, आप टाइप कर दो प्रगति जी फेसबुक में, या एनीबडी कैन टाइप ऑन द फेसबुक, Yes, sir, I'll do. so that everybody is aware. Cornflakes में there is something known as high fructose corn syrup. High fructose corn syrup. हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप की हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप के बिना कभी कॉर्नफ्लेक्स बन ही नहीं सकता। एंड आप अगर इसके बारे में पढ़ेंगे, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज, दिस इज अ बैड फॉर्म ऑफ शुगर, बहुत ही बैड फॉर्म ऑफ शुगर है, जिससे डायबिटीज, फैटी लिवर, ओबिसिटी, ये सब चीज बहुत बढ़ती है। अभी साल में आप एक बार दो बार बाहर घूमने जाओ, इंडिया के बाहर घूमने जाओ, वहां पे आप नाश्ता में खा लो कॉर्नफ्लेक्स, आई डोंट माइंड। ओके, साल में 5 बार, 10 बार, 15 बार, आई डोंट माइंड। बट घर पे रोज खाना सोच के कि ये अच्छा है, दैट इज नॉट ओके। हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप इज अ बैड फॉर्म ऑफ शुगर, जिससे बहुत सारी बीमारी बढ़ती है। ओके, तो जितना अभी हम लेस खाते हैं, चिप्स का पैकेट खाते हैं, लेस, बच्चे लोग हर दूसरे दिन लेस का पैकेट खाते हैं। अरे उसमें सॉल्ट भर भर के होता है, वो आप खाओगे, बच्चे को रेगुलर खिलाओगे, तो 30 साल में उसको हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। सो प्रॉब्लम इज दैट विच इज इन पैकेट प्रोसेस फूड, जो दिखता नहीं है बट वो गड़बड़ ज्यादा करता है। ओके, नेक्स्ट, so let us proceed now, Gargi. सो आपके सामने जैसे आप देख रहे हैं पीडीएफ में, सो एक चीज जो मुझे कोरोना वायरस के बारे में एकदम अच्छी नहीं लगी, वो है द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, फियर एंड एंजाइटी जो लोग लेने लगे। कोई एक आदमी स्ट्रेस लेके आज तक बीमार नहीं पड़ा है। ओके, तो हमको स्ट्रेस नहीं लेना है, हमारे अंदर राइट अवेयरनेस एंड नॉलेज होनी चाहिए, जिससे हम सही चीज कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट। तो हम सही चीज करेंगे, आपके सामने देखेंगे अभी इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स है। ओके, इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स है। नाउ अभी जैसे ड्रमस्टिक, सबसे पहले देखो ड्रमस्टिक, ड्रमस्टिक आप लोग को मिलता है वहां पे जहां पे आप लोग रहते हैं? ड्रमस्टिक, यस नो, कमेंट में डाले फेसबुक में, यस नो, ड्रमस्टिक मिलता है? सर मिल जाता है कभी कभी।
नाउ ड्रमस्टिक, जैसे आप लोग बहुत जन लिखने के मिलता है, ड्रमस्टिक जो है, ओके, ड्रमस्टिक इज नंबर वन, पूरी दुनिया में नंबर वन फूड फॉर इम्यूनिटी इज ड्रमस्टिक। ओके, अभी खाना कैसे है, आप लोग सब 1 किलो ड्रमस्टिक लेके जाएंगे, आप लोग सब 1 किलो ड्रमस्टिक लेके जाएंगे, उसको उंगली के साइज का, उसको उंगली के साइज का काट के उसको फ्रिज में रख दीजिए पूरे हफ्ते का। 1 किलो ड्रमस्टिक घर लेके गए, उंगली के साइज का काट के फ्रिज में रख देंगे, रोज रोज काटना नहीं है। जब आप लंच और डिनर करने बैठो, जो है रोटी सब्जी दाल चावल, जब लंच और डिनर करने बैठो, उसके पहले उसके पहले आपको 5-6 छोटे छोटे उंगली के साइज के ड्रमस्टिक लेने हैं, एक सीटी लगा के बॉईल करना है, बस बॉईल करके चूसना है, ऊपर का फेंक देना, चूसना है, ऊपर का फेंक देना। कितना टाइम लगेगा? 15 सेकेंड, 15 सेकेंड बिफोर लंच, 15 सेकेंड बिफोर डिनर। ओके, लंच डिनर के पहले 15 सेकेंड आप ड्रमस्टिक खाओ। बहुत जन सूप में भी खाते हैं, लौकी, कच्चा पपीता या लौकी और ड्रमस्टिक का सूप लो, तो आपके अंदर दिन में 1 बार 2 बार ड्रमस्टिक जाएगा, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। ड्रमस्टिक में इम्यूनिटी के अलावा क्या क्या चीज के लिए फायदा करेगा? ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, उसमें अनगिनत कैल्शियम, तो जॉइंट, घुटने, अर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा है, किडनी प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। तो ड्रमस्टिक हमारे अंदर रेगुलर जाना चाहिए, उसमें भर भर के फायदा मिलेगा। दूसरी चीज पे आते हैं, नंबर 2, देयर इज समथिंग नोन एज डाब वाटर, कोकोनट वाटर। ओके, नाउ कोकोनट वाटर है ना, हमेशा आप लोग याद रखना, कोकोनट वाटर हमेशा फ्रेश होना चाहिए, कोकोनट वाटर हमेशा फ्रेश होना चाहिए। ओके, नाउ उसको हमेशा काट के, कोकोनट वाटर को फ्रेश काट के उसको एक ग्लास में डालो, उसमें आधा नींबू डालो। कोकोनट वाटर फ्रेश काटो, उसको एक ग्लास में डालो, उसमें आधा नींबू डालो। कोकोनट वाटर में नींबू डालने से विटामिन सी, कोकोनट वाटर में नींबू डालने से विटामिन सी गोज अप 10 टाइम्स। जब घर को साफ करना है तब झाड़ू मारना पड़ता है, जब बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाना होता है ना, तो विटामिन सी बढ़ाना होता है। तो जितना विटामिन सी कोकोनट वाटर में वैसे ही होता है, उसका 10 टाइम बढ़ जाता है अगर हम उसमें नींबू डालें। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस एक चीज ध्यान दे कि कोई भी प्रकार के किडनी पेशेंट हो, कोई भी प्रकार के किडनी पेशेंट हो जिनको क्रिएटिनिन लेवल हाई हो, उनको डाब पानी ना देना, क्योंकि कोकोनट वाटर में पोटेशियम ज्यादा होता है, उनके अंदर हाई पोटेशियम चीज जानी नहीं चाहिए, अदरवाइज अपने सब पी सकते हैं। तीसरी चीज, गार्लिक, ऑनियन एंड हल्दी। कितने स्टडीज, मैंने खुद कम से कम 25 रिसर्च पेपर पढ़े हैं जो बताता है कि प्याज, प्याज जो है, प्याज से हमारी इम्यूनिटी बहुत, ऑनियन से इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। हल्दी सब घर पे होता है, गार्लिक घर पे होता है, तो जितना खाने पीने में आप ये सब चीज ऐड करोगे, उससे इम्यूनिटी हमारी ज्यादा बढ़ेगी। चौथा चीज, देयर इज समथिंग नोन एज पंपकिन सीड्स। आप लोग सुने हैं पंपकिन सीड्स वहां मिलता है? यस नो कमेंट पे लिखो, यस नो। हम आप सबके कमेंट देख रहे हैं फेसबुक पे, यस नो लिखो तो हमें समझ में आएगा। पंपकिन सीड मिलता है वहां पे, कद्दू के बीज कहते हैं इसको। जैसे अलसी का बीज होता है ना, फ्लेक्स सीड, अलसी का बीज, वैसे एक चीज होता है पंपकिन सीड्स। प्रगति जी मिल जाएगा वहां पे? बढ़िया, मिलता है सर। बढ़िया। तो बहुत सिंपल चीज है ये, रेडीमेड पैकेट मिलते हैं, रेडीमेड पैकेट मिलते हैं। आपको करना क्या है, बस डब्बी में भर के रखो, 3 से 4 चम्मच, 3 से 4 चम्मच सौंफ की तरह चबा के खाना है। हमारे यहाँ जब 25-27 कैंसर पेशेंट आते हैं ना हर वीक, तो हम उनको पंपकिन सीड सबको खिलाते हैं। पंपकिन सीड से इम्यूनिटी बढ़ता है, पंपकिन सीड से केमोथेरेपी, रेडिएशन के जो साइड इफेक्ट है उससे भी बचते हैं। पंपकिन सीड में भर भर के मैग्नीशियम, जिंक, भर भर के प्रॉपर्टीज है जिससे इम्यूनिटी अच्छा होता है। ओके,
पंपकिन सीड्स बहुत इजी टेस्टी भी होते हैं, उसको डब्बे में भर के रखो, 3-4 चम्मच सॉफ की तरह चबा के खाना है। ओके, नेक्स्ट, रेड कैप्सिकम। जितना विटामिन सी संतरा मौसम्बी में होता है उसका 3 गुना, उसका 3 गुना होता है रेड कैप्सिकम में, और वो हमें खाना चाहिए सौते करके, सैलेड फॉर्म कोई भी टाइम में हमें खाना चाहिए। वो भर भर के हमें फायदा मिलेगा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, होलिस्टिक हेल्थ पे ध्यान दे तो अवॉइडिंग स्ट्रेस, प्राणायाम करो, योगा प्राणायाम करना चाहिए। योगा से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है, इम्यूनिटी बढ़ता है, प्राणायाम से लंग्स अच्छा होता है, और कोरोना वायरस सबसे पहले जाके लंग्स को अटैक करेगा, तो लंग्स को अच्छा होना चाहिए, इम्यूनिटी बढ़ती है योगा प्राणायाम चीजों से, तो ये हमें करना चाहिए। स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, होलिस्टिक हेल्थ पे फोकस करें। नेक्स्ट, राइट ईटिंग पैटर्न, ध्यान से समझना, ये बहुत जरूरी है। आप हमें बताओ, सब कमेंट पे लिख के हमें बताएंगे कि जब कोई इंसान को बुखार होता है, कोई भी इंसान को जब बुखार होता है, उनको भूख ज्यादा लगता है या कम लगता है, लेस और मोर। कोई भी इंसान को जब बुखार होता है तो भूख ज्यादा लगता है, जब फीवर होता है तब भूख ज्यादा लगता है या कम लगता है। हमें बताएं, किसी को भी जब फीवर हो तब भूख ज्यादा लगे या कम लगता है? People are saying कम लगता है, and I also believe it. यस, सो लेस लगता है, कम लगता है, करेक्ट। हमें अभी अभी हमको समझ में आएगा क्यों कम लगता है। हमने डिस्कस किया कि हमारे पेट में करोड़ों बैक्टीरिया है। उस बैक्टीरिया उस बैक्टीरिया जो है उनका दो काम है, या तो खाना को डाइजेस्ट करो या बॉडी को साफ करो, या तो खाना को डाइजेस्ट करो या बॉडी को साफ करो। ओके, ये दो ही काम है। तो जब हमको बुखार होगा, ध्यान से समझो, जब हमको बुखार होगा, बॉडी इज इंटेलिजेंट, अपने आप डाइजेशन कम करता है, हमको खाने का मन ही नहीं करता है, बिकॉज द एंटायर फोकस ऑफ द बॉडी इज इन क्लीनिंग द सिस्टम, के अंदर जो इंफेक्शन गया है जिसके कारण बुखार हुआ है उसको बॉडी से बाहर फेंकना है। तो डाइजेशन अपने आप बॉडी कम करता है और बॉडी क्लीनिंग में ध्यान देता है। तो अभी ये जो टाइम है जब सो मच इन्फेक्शन इज स्प्रेडिंग, कोरोना वायरस का जो टाइम है, इस टाइम में हमें भी राइट ईटिंग पैटर्न क्या अपनाना चाहिए कि जो पका हुआ खाना है ना, ओके, जो पका हुआ खाना है विच इज रोटी सब्जी दाल चावल, वो दिन में 2 बार ही खाएंगे, वो है लंच और डिनर। लंच और डिनर में ही हमें पका हुआ खाना खाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में बॉडी को बहुत मेहनत लगेगा टू डाइजेस्ट। लंच एंड डिनर के अलावा हमारे अंदर प्लांट फूड ज्यादा खाना चाहिए। मतलब नेक्स्ट पॉइंट देखो, एम्प्टी स्टमक फ्रूट, याद रखो, खाली पेट ही फल जाना चाहिए, खाली पेट ही फल हमारे अंदर जाना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड खाने के बाद या खाने के साथ फल नहीं जाना चाहिए, फ्रूट ओनली एम्प्टी स्टमक ही। ओके, सो 2 बार खाओ, सुबह खा लो खाली पेट, 8 साढ़े 8 बजे, शाम को खा लो 5 बजे के आसपास। ओके, सो ये सब चीज आप करो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट, खाने के पहले सलाद खाएंगे, क्यूकम्बर, गाजर, क्यूकम्बर, बीटरूट, रेड कैप्सिकम, ड्रमस्टिक, जो हो, कोई भी 2-3 चीज का सैलेड आप लंच के पहले, और कोई भी 2-3 चीज का सैलेड आप डिनर के पहले खाओ। लंच एंड डिनर के पहले हमारे अंदर सैलेड जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? जैसे हमने डिस्कस किया, हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा कलर जाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कलर जाने चाहिए। ओके, सो आज जैसे हमारा अभी 15 मिनट बाद सेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो आज जितने भी जन है, जब लंच करने आप बैठो उसके पहले आप खीरा, गाजर, बीट जो भी घर पे हो, पहले कटोरी भर के सैलेड खाओ, उसके बाद आप नॉर्मल खाना खाएंगे। ओके, दिन में 1.5 से 2 लीटर पानी पीना चाहिए, क्योंकि जितना प्लांट फूड खाओगे उसके द्वारा भी पानी अच्छा जाता है, तो उसके अलावा 1.5-2 लीटर वाटर इज ओके।
जितना इंपॉर्टेंट अच्छा खाना है उतना इंपॉर्टेंट अनहेल्दी खाना हमें नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट गार्गी, व्हाट टू अवॉइड। तो इस पे वी आर अवेयर थिंग्स लाइक अवॉइड हैंडशेक्स, अवॉइड गोइंग टू पब्लिक प्लेसेस, ज्यादा क्राउड में ना जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। ये सब चीज हम 2 महीने से सुन ही रहे हैं, तो इस पे हम ज्यादा बात करेंगे नहीं, ये हम सबको मालूम है कि ये सब चीज हमारे अंदर हमको मेंटेन करनी चाहिए। तो दिस वी ऑल नो। नेक्स्ट, अभी हम, आप ध्यान से सुनो, अभी हम आपको 10 चीज बताएंगे आपके सामने, अभी आप जैसे देख रहे हैं 10 चीज हम आपको बताएंगे जो आप कल से कर सकते हैं, जिससे आपका ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। सो इस 10 चीज को ध्यान से समझो, नोट करो और इसको अमल करो। नंबर 1, something known as panta bhat. There is something known as panta bhat, also known as fermented rice. Okay, ध्यान से सुनो, करना क्या है। हम लोग सब दाल चावल खाते हैं, दाल और चावल हम लोग सब खाते हैं। ओके, लंच में डिनर में कभी भी एक बार तो दाल चावल खाते हैं। जब हम दाल चावल खाएंगे ना, और वो जो चावल है जो हम दाल के साथ मिक्स करके खाते हैं, कुक्ड राइस 2 चम्मच वो चावल लेना, जिसको आप दाल के साथ मिक्स करते हो ना, पका हुआ चावल, कुक्ड राइस 2 चम्मच पका हुआ चावल लेंगे, उसको रात को आधा ग्लास पौन ग्लास पानी में भर देना, रात को आधा ग्लास पौन ग्लास पानी में डाल देना। ओवरनाइट वो सोक करेगा, रात भर वो सोक करेगा। सुबह जब उठो, सबसे पहले आप वो आधा ग्लास पानी पी लेना, और वो जो 2 चम्मच चावल है जो रात भर पानी में है, वो भी आप खा लेना। कोई टेस्ट नहीं है, बट इसे कहते हैं फर्मेंटेड राइस और पांता भात। दिस इज नेचुरल प्रोबायोटिक, दिस इज नेचुरल प्रोबायोटिक। ओके, पेट की सारी प्रॉब्लम के लिए अच्छा है, कोलाइटिस के लिए अच्छा है, किसी को पेट में दर्द हो रहा है तो अच्छा है, गैस बनता है तो अच्छा है, एसिडिटी हो रहा है तो अच्छा है, पेट साफ नहीं हो रहा है तो अच्छा है, हमारे अंदर जो गट बैक्टीरिया है उसे प्रोबायोटिक चाहिए। तो पांता बात इज अ नेचुरल प्रोबायोटिक, जिससे पेट की काफी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, एंड इट इज वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं घर पे, वो है ड्रम स्टिक। ड्रम स्टिक जैसे हमने इस पे बहुत डिस्कस किया, ड्रम स्टिक इज वेरी वेरी गुड, ड्रम स्टिक इज वेरी वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी, वेरी गुड फॉर ब्लड प्रेशर, वेरी गुड फॉर डायबिटीज, वेरी गुड फॉर जॉइंट पेन्स। दिन में एक बार 2 बार हमारे अंदर ड्रम स्टिक जाना चाहिए। नेक्स्ट, तीसरी चीज, खाली पेट फल। जैसे हमने आपको बताया, फ्रूट ओनली एम्प्टी स्टमक ही, खाली पेट ही हमारे अंदर फल जाना चाहिए, फल खाने के साथ या खाने के बाद नहीं जाएगा। जब आप सीजनल फ्रूट खाओगे, पपीता, अनार, अमरूद, बनाना, मैंगो, अभी आम आ रहे हैं, सीजन के जब फ्रूट खाओगे तो उससे हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा कलर जाते हैं, हमारे अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल भर भर के जाता है। तो हमारे अंदर एम्प्टी स्टमक फ्रूट जाना चाहिए। नंबर 4, जीरा पानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनो सब, हमने समझा कि चाय कॉफी में कोई फायदा नहीं है, वो हम शौक के लिए पीते हैं, अंदर जाके बुराई करता है, कुछ अच्छा नहीं करता है चाय कॉफी। तो अभी चाय कॉफी तो रोज रोज पीना नहीं चाहिए, तो पीना है तो क्या पिएंगे? देर इज समथिंग नोन एज जीरा वाटर। ध्यान से समझो, लास्ट 7 साल 8 साल में हमने इतने पेशेंट को जीरा पानी दिया है, एंड आज तक एक आदमी नहीं आया जिसको जीरा पानी नहीं भाता है। करना क्या है? वेरी वेरी सिंपल। करना क्या है? 1 गिलास पानी गर्म करने डालो, जैसे चाय पत्ती डालते हैं उसकी जगह पे आप 1 चम्मच जीरा डालो, उसमें तुलसी पुदीना ऐड कर सकते हैं, सौंफ, अजवाइन, जिंजर, ये सब कुछ डाल सकते हैं, और 1 गिलास को उबाल के आधा करो, 1 गिलास को उबाल के आधा करो। ओके, और छान के चाय के कप में डालो, ऐड लिटिल लेमन, थोड़ा सा नींबू ऐड करो,
ये जीरा पानी हमें पीना चाहिए। जीरा पानी से पूरा सिस्टम क्लीन होता है, वजन कम होता है, हार्मोनल बैलेंस ठीक होता है, बीपी के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, गैस एसिडिटी के लिए रामबाण। जिनको भी गैस एसिडिटी हो, आप ये आज से चालू करेंगे, दूध चाय कॉफी छोड़ दो, मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड करो। आप जीरा, 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच अजवाइन डाल के जीरा पानी पीना, एक हफ्ते में आपका गैस 80% 90% ठीक हो जाएगा। यस, आप लेमन इसमें डाल सकते हैं। सो छानने के बाद चाय के कप में डालो, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन, ये जीरा पानी पियो, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ओके, नेक्स्ट। जीरा पानी के बाद नेक्स्ट आता है योगा प्राणायाम। जैसे हमने बात किया, योगा से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है, प्राणायाम से लंग्स अच्छा होता है। दिन में 1 बार 2 बार इस सुबह शाम इसको करना चाहिए। नेक्स्ट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब जिस टाइम में हमारा डिनर होता है, उस टाइम से 12 घंटा हमें नहीं खाना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, जिस टाइम में हमारा डिनर होता है, उस टाइम से 12 घंटे हमें नहीं खाने चाहिए। ओके, नाउ मतलब अगर 8 बजे डिनर हो, तो आप सुबह, रात को 8 बजे अगर डिनर करो, तो सुबह 8 बजे आप खाओ। वेरी सिंपल। अगर हमारा 8 बजे डिनर हो रात को, तो सुबह 8 बजे खाओ, 12 घंटा गैप दे दो। क्यों क्यों गैप देना चाहिए? सेम लॉजिक, वो बुखार वाला। जब आप नहीं खाएंगे तो आपका बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, आपका बॉडी साफ सफाई कर रहा है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो मिनिमम, बहुत जन 13 घंटा 14 घंटा भी करते हैं, बट मिनिमम 12 घंटा हमें नहीं खाना चाहिए। 8 से 8, 9 से 9, 7 से 7, जो भी टाइम आप डिसाइड करो, बट मिनिमम 12 घंटा डाइजेशन को रेस्ट देना चाहिए। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गार्गी। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुड बाय टू ऑल एडिक्शंस। आप लोग सब ध्यान से इसको सुनो, ये स्लाइड को। हाँ, ये अब आप, आई डोंट नो, लोगों को छोटी बात लगती होगी, बट मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। हम जब पेशेंट देखते हैं ना, हम देखते हैं बहुत जन को ना बहुत चीजों का एडिक्शन है। अगर आप लोग को ये पॉइंट अच्छा लगे और अगर आप अमल करोगे ना, तो हमको थम्स अप दिखाना कमेंट में डाल के। बहुत जन को बहुत चीज का एडिक्शन होता है। नंबर 1, किसी को पान पराग का एडिक्शन, किसी को ड्रिंकिंग का एडिक्शन, किसी को ब्लैक कॉफी का एडिक्शन, किसी को चाय का एडिक्शन। कोई भी चीज का एडिक्शन हमें नहीं होना चाहिए। बहुत जन बोलते हैं कि हम चाय नहीं पीते ना तो हमारा माथा दुखता है। अरे वो 2 दिन दुखेगा, 3 दिन दुखेगा, चौथे दिन नहीं दुखेगा। हमें आगे के 20 साल 30 साल के बारे में सोचना है, हमें 2-3 दिन के बारे में नहीं सोचना है। जब हम पेशेंट आते हैं ना, जब वो 3 दिन में 3 बार 4 बार चाय पीता है, हम उनका चाय बंद कराते हैं, उनको जीरा पानी और ये सब काढ़ा पिलाते हैं, तो वो पहले 2-3 दिन उनको तकलीफ होता है। वो हमें बोलते हैं कि डॉक्टर साहब एक बार तो दे दो, सुबह का एक चाय तो दे दो, हमारा माथा दुखता है। हम उनको बोलते हैं कि अरे आपको चाय पीना है, आप हफ्ते में 1 बार पियो, 2 बार पियो, बट उसके बिना हमें नहीं चलता है, उसके बिना हमारा माथा दुखता है। ये गलत बात है, ध्यान रखें, ये गलत बात है। हम है कौन? हम कौन है? वी आर पावरफुल सोल, हम आत्मा है। ओके, हम कॉन्शियसनेस है। हमें कोई भी चीज का एडिक्शन होना नॉट राइट। हमें कोई चीज का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। आपको एंजॉय करना है, आपको पार्टी करना है, अरे करो ना, हफ्ते में 1 बार 2 बार एंजॉय करो, जो मन खाओ, बट एडिक्शन के उसके बिना हमको नहीं चलेगा, ये गलत बात है। और हमने कितनों को देखा है जिन्होंने अपना बीमारी रिवर्स किया है या जिन्होंने गुड हेल्थ बनाया है, उन्होंने एडिक्शन को छोड़ा है।
उन्होंने एडिक्शन को छोड़ा है। अरे मैं आपको कहता हूं, आप पहले फर्स्ट क्लास हो जाओ, आप आपकी सारी बीमारी रिवर्स करो, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाओ, अच्छी हेल्थ करो, फिर हम दोनों साथ में बैठ के चाय पियेंगे। बट एक बार हमको सही चीज करना बहुत जरूरी है। ओके, सो ध्यान से इसको, एंड दिस इज द टाइम, नाउ यू आर एट होम, आप घर वालों के साथ हो, आपके लव्ड वंस के साथ हो, तो अभी जो सही चीज है ना उसको करो। आपको अगर मालूम है कि कोई भी चीज का आपको एडिक्शन है, आप उसको एक हफ्ता 10 दिन के लिए छोड़ दो। एक बार एडिक्शन अपने आप ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद आप वंस इन अ वाइल एंजॉय करो, आई डोंट माइंड। ओके, आप सब इसको अमल करेंगे। नेक्स्ट, हैविंग सीड्स रेगुलरली। तो जैसे हमने पंपकिन सीड्स के बारे में चर्चा की, वैसे अलसी का बीज आता है, चिया सीड आता है, सनफ्लावर सीड आता है। ये सारे बीज बहुत अच्छे होते हैं, बहुत भर भर के फायदा। और सबसे बेस्ट पार्ट ये, खाने में ना 5-10 मिनट लगता है, सॉफ की तरह चबा के खाना है, दिन में 2-4 बार जब मन सॉफ की तरह चबा चबा के खाओ, बट भर भर के फायदा। नेक्स्ट, हाँ, नींद की जो बात कर रहे थे अपने, नींद अच्छी होनी बहुत जरूरी है। आप हमें लिख के बताओ कमेंट में, आपके हिसाब से इंसान को नींद अच्छा कब आता है? आपके हिसाब से इंसान को नींद कब अच्छी आती है? When relaxed, okay, when tired, okay, when body is relaxed, okay। काफी सारे कमेंट आ रहे हैं। ओके, ध्यान से समझो, हमारे बॉडी में प्रगति जी, आई वांट द स्कूल टू टाइप, मॉडर्न स्कूल टाइप करें फेसबुक में, सो दैट एवरीबडी कैन सी। यस सर। हमारे बॉडी में मेलेटोनिन, मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन है। ध्यान से समझो, हमारा बॉडी एक हार्मोन बनाता है, उसका नाम है मेलेटोनिन, MELATONIN। मेलेटोनिन नाम का हार्मोन है जो हमारा बॉडी बनाता है। जब हमारा बॉडी मेलेटोनिन नाम का हार्मोन बनाएगा, सही टाइम पे सही मात्रा में हार्मोन बनाता है, तब इंसान को नींद आता है। उसीलिए जब कोई अमेरिका से आता है, इंडिया या कनाडा से या न्यूजीलैंड से या लंदन से जब इंडिया आता है, तो पहले 2-3 दिन उनको वहां के हिसाब से नींद आता है, क्योंकि उनका जो बॉडी है वो वहां के टाइम के हिसाब से मेलेटोनिन बनाता है। ओके, तो हमारे बॉडी में नेचुरली ये हार्मोन रिलीज होना जरूरी है, उससे मेलेटोनिन जब रिलीज होता है उससे नींद अच्छी आती है। ओके, नाउ तो जिनको नींद की प्रॉब्लम है, मतलब हार्मोनल प्रॉब्लम है, हमारा बॉडी वो हार्मोन बना नहीं रहा है, तो अभी कौन सा क्या हम करें जिससे हमारा बॉडी हार्मोन अच्छा बनाएगा? नंबर 1, देयर इज समथिंग नोन एज जायफल। मॉडर्न स्कूल टाइप करें, देयर इज समथिंग नोन एज जायफल। जायफल को इंग्लिश में नटमेग कहते हैं। बहुत घरों में जायफल मिलता है, हमारे घर में जायफल होता ही होता है। जायफल खाने से नींद अच्छा होता है। जायफल कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है? तो जायफल को घिस के पाउडर बनाओ। ओके, जायफल को घिस के पाउडर बनाओ, और शाम के टाइम में कोई भी फल के साथ आप 1/4 टी स्पून घिस के 1/4 चम्मच आप जायफल खाओ। ये फल के साथ, एप्पल, बनाना, कोई भी फल के साथ, उससे आपकी नींद अच्छी होगी। नंबर 1। नंबर 2 जो अच्छा है वो है पिस्ता। पिस्ता इजीली ड्राई फ्रूट होता है ना, पिस्ता। पिस्ता में आप देखना गूगल में जाके, पिस्ता में मेलेटोनिन नाम का हार्मोन बहुत अच्छा है, और उससे नींद, मुट्ठी भर पिस्ता सुबह शाम को कभी भी खाओ, उससे धीरे धीरे नींद अच्छा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके, लिख देंगे प्रगति जी, है ना, सो दैट सबको ध्यान से समझे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा चीज पंपकिन सीड्स, पंपकिन सीड्स खाने से भी हमारा नींद बहुत अच्छा होता है। तो पंपकिन सीड्स भी आप 2 3 4 चम्मच दिन में आराम से खाओ, उससे भी हमारा नींद बहुत अच्छा होता है। अच्छा, अभी चौथा हम एक चीज आपको बताने जा रहे हैं जिससे नींद बहुत अच्छा होता है, पर उसके लिए आप लोग सबको हमको देखना पड़ेगा, तो आप लोग सब स्क्रीन में ध्यान दें एंड हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझे। देयर इज समथिंग नोन एज लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। प्रगति जी आप टाइप कर दो लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। ओके, तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग मतलब हमारा जो राइट नॉस्ट्रिल है उसको आप बंद करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप ब्रीथ करेंगे। अभी मत करो, आप हमको देखो और समझो। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप ब्रीद इन करेंगे और ब्रीद आउट करेंगे। ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करना है, दोनों चीज लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही करेंगे। जब जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन करते हैं और ब्रीद आउट करते हैं तो पूरा ऑक्सीजन जो है वो ब्रेन के राइट साइड में जाता है, जिससे पैरासिम्फेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और पैरासिम्फेटिक नर्वस सिस्टम से हमको काम, कंपोज्ड, पीस, शांति, रिलैक्स माइंड, वो वाली फीलिंग्स आती है। स्ट्रेस एंजाइटी लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं एंड स्ट्रेस एंजाइटी ये सब मेलेटोनिन को प्रोडक्शन में रोकता है। ओके, तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग कब करना है? डिनर के बाद। डिनर के बाद सोने के पहले आप 8-10 बार इसको 2-3 सेट में करें। इससे बहुत 15 दिन 10 दिन में धीरे धीरे आपकी नींद अच्छी होने लगेगी। दिस इज नोन एज लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। ओके, सो इसके 4 चीज आप करो, जायफल, पिस्ता, पंपकिन सीड्स एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। ओके, ये करो, इससे बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी नींद हो जाएगी एंड दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव ऑल्सो। नेक्स्ट, next is meditation. So again, मेडिटेशन, हमने इमोशनल हेल्थ के बारे में बात किया, दैट इमोशनल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इमोशनल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम मेडिटेशन दिन में 1 बार 2 बार करना चाहिए। यू नो, इनफैक्ट सुबह, बेस्ट है सुबह जब उठो या रात को जब सोने जाओ, ये 2 टाइम अच्छा है, बिकॉज इस दोनों टाइम में हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी इज लोअरिंग डाउन, सो वी आर मोर टूवर्ड सबकॉन्शियस माइंड देन कॉन्शियस माइंड। ओके, सो ये दोनों टाइम में करना चाहिए, इससे हमारा इमोशनल हेल्थ अच्छा होता है। Okay, now very quickly let's run through this, Gargi, very very quickly let's run through this. So ये 10 चीज हम रिपीट कर रहे हैं जो हमने आपको बताया। नंबर 1 इज पांता भात, नेचुरल प्रोबायोटिक, पेट के लिए अच्छा। दूसरा, ड्रम स्टिक, वेरी वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी, वेरी गुड फॉर बीपी, डायबिटीज, जॉइंट पेन्स। नेक्स्ट, तीसरा, एम्प्टी स्टमक फ्रूट, खाली पेट फल खाना चाहिए, वेरी वेरी गुड फॉर सिस्टम। नंबर 4 इज जीरा पानी, पूरा सिस्टम क्लीन करता है, डिटॉक्स वाटर की तरह काम करता है। जीरा पानी इज वेरी वेरी गुड। आज शाम को 5-5:30 बजे आप लोग सब हमें याद करेंगे एंड आप लोग सब जीरा पानी पीना। ये जो पीडीएफ है ना, ये जो हम अभी शेयर किए, ये पीडीएफ हम भेज देंगे प्रगति जी आपको, आप सब पेरेंट्स से सबसे शेयर कर लेना सो दैट ये सबके पास पीडीएफ पहुंच जाए। ओके, सो नेक्स्ट इज योगा प्राणायाम, योगा करना चाहिए, प्राणायाम इज गुड फॉर लंग्स, ये हमें दिन में 1 बार 2 बार करना चाहिए। नेक्स्ट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग, मिनिमम 12 घंटा हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग रात को करना चाहिए। ओनली वाटर, खाली पानी पी सकते हैं केवल, बट डिनर के बाद 12 घंटा कुछ खाए ना। नेक्स्ट इज गुड बाय टू ऑल एडिक्शन, जैसे हमने आज सबने डिस्कस किया कि कोई भी चीज का एडिक्शन हम नहीं रखेंगे और हम उसे अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट इज हैविंग सीड्स रेगुलरली, पंपकिन, सनफ्लावर, चिया सीड, फ्लेक्स सीड्स, ये सब चीज हमें रेगुलर खाना चाहिए, इसके बहुत फायदा मिलते हैं। नेक्स्ट इज गुड स्लीप, इसके लिए हमने 4 चीज बताया, पिस्ता, जायफल, पंपकिन सीड्स एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, इसको करें और स्लीप का फायदा लें। और नेक्स्ट इज मेडिटेशन, दिन में 2 बार हमें करना चाहिए, एटलीस्ट 1 टाइम्स तो करें, इससे इमोशनल हेल्थ अच्छा होता है। सो दीज आर द 10 थिंग्स जो आप लोग इजीली कर सकते हैं, जिससे आपकी हेल्थ और इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। Thank you so much once again, the modern school, for getting this organized. और आपने एक अच्छा मार्गदर्शक दिया है सबको, and you have really
really helped a lot of parents today, I'm sure. And ये information से लोगों को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा and उनकी आदतें अच्छी हो जाएगी और उनकी immunity बढ़ जाएगी. Before I take some questions, हम 2-4 questions ले सकते हैं. But before that, let me tell all of you that आप जितने भी जन आज सुन रहे हैं, एक चीज ध्यान दें कि हमारी हेल्थ हमारे हाथ में ही है. हमारी हेल्थ हमारे हाथ में ही है और सही चीज आप करना, इम्यूनिटी बढ़ाना, सही खान पान करना, आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी. थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन जो भी आज प्रेजेंट थे. थैंक यू सो मच वंस अगेन. थैंक यू, अ बिग थैंक यू टू द मॉडर्न स्कूल फॉर गेटिंग दिस ऑर्गेनाइज्ड. वी कैन क्विकली टेक सम क्वेश्चंस नाउ. किसी को अगर कुछ पूछना हो तो हम 2-4 क्वेश्चन ले सकते हैं. ओवर टू यू प्रगति. Sir, one question was there that कितना पिस्ता और बादाम देना चाहिए एक बच्चे को अगर हम देना चाहते हैं तो? सॉरी, कितना पिस्ता और बादाम बच्चे की एज? या मतलब कोई भी से 3rd 4th क्लास या एज वाइज हमें कितना पिस्ता या बादाम देना चाहिए? अगर बच्चा 4-5 साल के ऊपर का है ना, हाँ, तो 4-5 बादाम, 4-5 8-10 पिस्ता भी दे. मेरी डॉटर है 2.5 साल की. वो 10-12 पिस्ता रोज खाती है. भर भर के फायदा मिलता है उसको, है ना. सो उसीलिए पिस्ता बादाम आप 4-5 बादाम खिलाओ, 10-12 पिस्ता खिलाओ आराम से, नो प्रॉब्लम. सर पर एक मेरा पर्सनल डाउट है ये कि जैसे ये जो हम जिस जगह पर अभी रह रहे हैं दैट इज राजस्थान, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत गर्मी होती है, तो क्या बादाम ज्यादा खाने से कोई और दिक्कत तो नहीं है? ज्यादा 2-4 बादाम इज नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. ठीक है सर. सर एक और बात जो मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आप थोड़ा सा ये जो ब्लड शुगर जिनको है, जिनको थायराइड है या जिनको और इस तरह के लाइफस्टाइल डिजीजेस है, उनके लिए आप थोड़ा सा कुछ बोलना या बताना चाहेंगे स्पेशल टिप? देखो 2-3 चीज है. दो तीन चीज इंपॉर्टेंट हम आपको बताना चाहते हैं. yes, सबसे पहले कि हम सबको ये बताया गया है कि जितने भी ये सब लाइफस्टाइल डिजीज है ना, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, हम सबको ये बताया गया है कि जितनी भी बीमारी है ना, ये सब लाइफ लॉन्ग डिजीज है. कि एक बार आपको बीपी हो गया, एक बार आपको थायराइड हो गया, एक बार आपको कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो ये सब बीमारी जो है ना, ये लाइफ लॉन्ग आपको गोली खानी है. हमें आज तक हमेशा यही बताया गया है. बट द फैक्ट इज कि ये जितनी बीमारी है ना, डायबिटीज, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये लाइफ लॉन्ग डिजीज नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिजीज है. तो अगर हम लाइफस्टाइल ठीक करें, हमारा खान पान ठीक करें, हमारा इम्यूनिटी अच्छा करें, तो ये सब चीज हम आराम से रिवर्स कर सकते हैं. एंड अगर हजारों आदमी, 100 आदमी ने अगर रिवर्स किया है तो काफी हम सब भी कर सकते हैं. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बस हमें ये चीज का ज्ञान होना चाहिए कि ये माइंडसेट हमारा होना चाहिए कि हमें बीमारी के साथ नहीं जीना है. ओके, ये हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि हमें बीमारी के साथ नहीं जीना है और हमें बीमारी रिवर्स करनी है. सो दैट इज नंबर 1 मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू कि माइंडसेट को आप चेंज करो. दूसरा, जब माइंडसेट चेंज होता है, दूसरा चीज हमें करना है वो है हमको सही चीज का ज्ञान होना चाहिए कि क्या खाना पीना है. फाइबर, जो इंसान फाइबर खाता है उनको डायबिटीज, ओवरवेट होता नहीं है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो फाइबर अच्छा होना चाहिए, फाइबर इंटेक अच्छा होना चाहिए. ओके, हार्मोनल बैलेंस होना जरूरी है. ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड तीसरा चीज, जब सही ज्ञान हो गया, जब माइंडसेट चेंज हो गया, तीसरी चीज जो करनी है वो है हमको आदत सुधारनी है, हमारी हैबिट में, हमारे लाइफस्टाइल में लानी है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Great, sir. Sir, there is a last question from our school side. Miss Juhi has asked that if someone has allergy or temporary allergy, anything which we can do for someone who has sudden allergy with temperature change, उसके लिए how food is helpful? देखो 2 चीज इंपॉर्टेंट है. नंबर 1,
पहले तो हमें देखना है कि कोई फूड सेंसिटिव एलर्जी तो नहीं है। जैसे बहुत जन को पीनट से एलर्जी, बहुत जन को कोई पर्टिकुलर फूड से एलर्जी होता है, तो पहले वो आप ऑब्जर्व करो कि ऐसा कुछ तो नहीं है कि कुछ खाने से एलर्जी होता है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। नंबर टू हमें ये समझना है दैट 80% ऑफ स्किन एलर्जीज कम फ्रॉम द गट, वीक गट। तो गट को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो थिंग्स लाइक पांता बात आपको हेल्प करेगा। कड़ी पत्ता होता है ना, कड़ी पत्ता जो हर घर में मिलता है, करी लीव्स, कड़ी पत्ता इज वेरी वेरी गुड फॉर स्किन और स्किन एलर्जीज और हेयर। उसके लिए कड़ी पत्ता बहुत अच्छा होता है। सो आप 10-15 कड़ी पत्ता दिन में चबा के खाइए लंच या डिनर के पहले, उसके बहुत फायदा मिलेंगे स्किन एलर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से। बट मेरा 2 पॉइंट इसमें है। नंबर 1 कि आप ऑब्जर्व करो कोई पर्टिकुलर चीज से तो एलर्जी नहीं हो रहा है, एंड अगर ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज नहीं आपको समझ में आ रही है तो सेकंड चीज हमें इम्यूनिटी स्ट्रांग करना पड़ेगा, जिससे ये बेटर हो सकती है। बट अगर सही तरीके से इसको हैंडल करें तो 1.5-2 महीने में ये सॉल्व हो सकता है। राइट, ग्रेट, थैंक यू Thank you सो so मच। much, sir. माय प्लेजर Uh, प्रगति। it was an Hello. eye opener for everyone. Now I will just move to Navneet ma'am. She wants to say something. Hello, Pragati. Yes, ma'am, you're audible. Hello. I think you can hear me, Pragati. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I can. Okay. Thank you, Karan sir. Thank you so much. I think on behalf of Modern School and all Badmer जो लोग भी सुन रहे हैं, thank you so much. I think it is going to help them a lot. And I myself follow most of the things. और मुझे बहुत फायदा हुआ है पर्सनली इससे। मेरा थायराइड ठीक हो गया, मेरे हस्बैंड का बीपी ठीक हो गया। So I am a live example for all of you. So I think we all should follow him. And thanks a ton for coming on live and helping us out. Thanks a ton. Thank you so much. Our pleasure. Thank you so much, Navneet ji, to have us. Thank you. हमारे हाथ में ही है, और सही चीज आप करना, इम्यूनिटी बढ़ाना, सही